Hello friends, welcome back to my channel Learning with Ayushi. So I have brought another video lecture for you all. In the previous video, I had shared the entire explanation of the story, A Tiger in the House. And in this video, I have brought the summary of the lesson. I hope this will make you people understand the story more nicely. And if you people have forgotten to subscribe, like, or share my channel, then please do that first and then you can listen to the summary. Or once you want to listen the summary and then press on the bell icon, that's completely your choice. So without wasting any time, I will explain you the summary of the story. तो हम बढ़ते हैं आगे summary के लिए. Okay? A Tiger in the House. A Tiger in the House is a story by the famous author Ruskin Bond. Also, the narrator of the story is Ruskin Bond himself. The story is about a tiger cub, Timothy. One day, when the author's grandfather was walking down the forest path along with his party, he found a tiger cub. He decided to bring that cub home. It was named Timothy by his grandmother and was brought up on bottle milk. As Timothy grew, he was fed raw mutton, cod liver oil, pigeons and rabbits also. So basically this story, आपको पता ही है ये story रस्किन बॉन्ड ने लिखी है और ये story में ये स्टोरी खुद ही नरेटर ही खुद नरेट कर रहा है हिमसेल्फ. स्टोरी छोटे से कप के बारे में, टाइगर कप के बारे में जो एक बहुत बड़ा टाइगर हो जाता है. इट्स इजी कि आप एक छोटे से टाइगर के बेबी को घर पे रख सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ बिग टाइगर इन द हाउस, राइट? So when he was a tiger cub, then grandfather had brought him home. तब grandfather उसको घर लेकर आए थे एक forest path से and उन्होंने decide किया कि मैं इस tiger cub को घर लेके जाऊंगा क्योंकि grandfather को animals बहुत पसंद थे. उन्होंने अपने घर पे ही एक mini zoo बना रखा था जिसमें उन्होंने हर animal को रख रखा था and उन्होंने क्या कहते हैं फिर वो उस छोटे से टाइगर बेबी कप को अपने घर ले गए और वहां पे जो उनकी वाइफ है, जो ग्रैंड मदर है नरेटर की, उन्होंने उसका नाम टिमोथी रखा. एंड ही वॉज ब्रॉट अप ऑन बॉटल मिल्क. जिस छोटे बच्चे को बॉटल से मिल्क नहीं देते हैं वैसे ही टाइगर कप को प्रोवाइड किया जाता था. और जैसे ही वो बड़ा होता गया, ही वॉज फेड रॉ मटन. रॉ मटन मीन्स फिश एंड ये नॉनवेज चीजें, कॉड लिवर ऑयल, पिजन्स एंड रैबिट्स ऑल्सो. तो उसको पिजन्स और रैबिट्स भी खाने को दिए गए थे. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. When Timothy was a cub, he was friends with Toto the monkey and a puppy. Timothy was initially afraid of the puppy, but later on he became friends with the puppy and allowed him to rest on his back. The author became Timothy's favorite when he came to live with his grandparents. He would be all around the author and would pretend to bite his ankle. So now Timothy was a cub and he had a lot of friends with him. Toto the monkey. आपको पता है Toto the monkey एक स्टोरी है क्लास 9th में, तो आप लोग Toto the monkey के बारे में भी एक स्टोरी पढ़ोगे बाद में. अभी हम वापस आ जाते हैं टाइगर इन द हाउस के स्टोरी में. So उसके पास फ्रेंड्स थे बहुत सारे, Toto the monkey and a puppy, and Timothy was initially afraid of the puppy. शुरुआत में तो वो बेबी का बहुत अफ्रेड होता था पपी से, बट धीरे धीरे लेटर ऑन ही बिकेम फ्रेंड्स विद द पपी एंड अलाउड हिम टू रेस्ट ऑन हिज बैक. मतलब वो अलाउ करता था कि वो उसकी पीठ में बैठ के रेस्ट करे. द ऑथर बिकेम टिमोथीज फेवरेट. वो उसका फेवरेट बन गया ऑथर का. ठीक है, तो ऑथर बिकेम टिमोथीज फेवरेट. जो ऑथर हमारे रस्किन बॉन्ड है वो टिमोथी के फेवरेट थे. जब भी वो अपने दादा दादी से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आते थे तो वो पूरा टाइम ऑथर के अराउंड ही घूमता रहता था और हमेशा ये जताता था, प्रिटेंड करता था कि वो हमारे ऑथर रस्किन बॉन्ड के एंकल्स को बाइट करेगा, काटेगा. ओके, बट ही नेवर यूज्ड टू डू दैट वे. सो जो हमारे ऑथर है वो उसके फेवरेट थे. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. Timothy would sleep in the
cook's quarters when he became 6 months old. He became less friendly. He ate small animals, sometimes pulled his chain hard, and also snarled at everybody. However, he had clean habits and scrubbed his face with his paws like a cat. तो टिमोथी कुक के क्वार्टर में उसने सोना स्टार्ट कर दिया, तो वो 6 मंथ्स का हो गया था. 6 मंथ्स का थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो उसने अब उसके कुक के क्वार्टर में स्लीप करना स्टार्ट कर दिया था. एंड ही बिकेम लेस फ्रेंडली. वो लोगों से कम बात करता था. ही बिकेम लेस फ्रेंडली. वो सारे छोटे छोटे एनिमल्स खा जाता था. ही एट स्मॉल एनिमल्स, समटाइम्स पुल्ड हिज चेन हार्ड. जो चेन से वो बंधा रहता था उस चेन को बहुत हार्ड पुल करता था. एंड ऑल्सो स्नाल्ड एट एवरीबडी. स्नाल्ड मीन्स टू घूरना, किसी को घूरता था. However, he had clean habits, पर उसके बहुत साफ हैबिट्स होती थी. And scrubbed his face. वो अपने फेस को बहुत रब करता था, स्क्रब करता था with his paws like a cat. जैसे कैट करती है, अपने आप को मसलती रहती है, वैसे ही टिमोथी जब वो 6 months old हुआ तो उसने ये सब हैबिट्स इनकलकेट करी. ओके, लेट्स मूव अहेड. As he grew, he became dangerous, and thus the grandfather decided to take him to the zoo at Lucknow. He took Timothy in a first-class compartment. After 6 months, grandfather visited Timothy in the zoo. He patted the tiger's forehead, prickled his ears, and wagged his mouth. The tiger started to lick his hands, but sprang away when a leopard in the neighboring cage snarled at him. Seeing this, the grandfather decided to meet the superintendent and request him to transfer Timothy to another cage. But he was unlucky and could not meet him. So now basically अब आगे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 6 months old हो गया था, फिर वो अपने कुक के क्वार्टर में सोने लग जाता है. देन आफ्टरवर्ड्स जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, आपको ऐसे ही पता है कि टाइगर बहुत डेंजरस हो जाता है, तो फिर वो और बड़ा हुआ आफ्टर 6 months, सो ही बिकेम वेरी डेंजरस. एंड फिर ग्रैंडफादर को डिसीजन लेना पड़ा कि उन्हें उसको जू में शिफ्ट करना पड़ेगा एट लखनऊ. वो टिमोथी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट मीन्स फर्स्ट क्लास ट्रेन से, एसी कंपार्टमेंट से लेकर गए. एंड उसके बाद 6 months के बाद ग्रैंडफादर उसको विजिट करने गए टिमोथी को जू में. जब ग्रैंडफादर उससे मिलने गए तो फिर उन्होंने टिमोथी के सर को पैट किया. पैट मीन्स हिलाया, ठीक है. सो ही पैटेड द टाइगर्स फोरहेड, प्रिकल्ड हिज ईयर्स. ऐसे चुटकी नहीं बजाते, उसे प्रिकल करते हैं ईयर्स में. वो उसका, उनका और टिमोथी का साइन था. एंड वैग्ड हिज माउथ, हाथ में ऐसे करके मुंह में से हाथ मारा. तो टाइगर स्टार्टेड टू लिक हिज हैंड. फिर टाइगर ने क्या किया, उसके हैंड्स को लिक करना, ग्रैंडफादर के हैंड्स को लिक करना, मतलब चाटना स्टार्ट कर दिया. बट स्प्रैंग अवे, पर वो दूर चला जाता था जब भी लेपर्ड आता उसके नेबरिंग केज से उसको घूरता. Seeing this, the grandfather decided to meet the superintendent. ये देख के ग्रैंडफादर को बहुत गुस्सा आया कि लेपर्ड उसको डरा रहा है, तो फिर वो ढूंढने गए सुपरिटेंडेंट को. जब ढूंढने गए तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप टिमोथी को चेंज कर दीजिए, दूसरे केज में कर दीजिए, बिकॉज ये जो लेपर्ड है वो बहुत उसको डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत स्नैल कर रहा है. बट ही वॉज अनलकी एंड कुड नॉट मीट हिम. तो बट वो बहुत अनलकी था दैट ही कुड नॉट मीट हिम. लेट्स मूव अहेड. He went to the tiger's cage, disappointed to bid him goodbye. Once again he patted the tiger. A keeper recognized the grandfather and told him that Timothy died of pneumonia. He also told him that this tiger was trapped only last month and is very dangerous. The grandfather's arms was still in the cage and the tiger was licking it. He somehow withdrew his arm from the cage. He gave a disrespectful look to the keeper and bid the tiger good night. Now see, grandfather को एक शॉकिंग चीज पता चलती है जब वो उसके केज के बाहर डिसअपॉइंटेड खड़े थे उसको बाय कहने के लिए.
तो जब उन्होंने वापस उसको पैट किया टाइगर को, देन ही वाज जस्ट गोइंग बैक, तो तभी एकदम से कीपर जो पहले भी था, कीपर मीन जो उनकी रखवाली करता है, ही वाज देयर, उसने ग्रैंडफादर को पहचान लिया, उसने कहा सर आप, तो फिर और उसने बोला कि देखो ये टिमोथी के साथ कैसे हो रहा है, तो उसने बोला सर ये टिमोथी नहीं है, टिमोथी तो लास्ट मंथ ही मर गया बिकॉज ऑफ निमोनिया। और उन्होंने ये भी बताया, जो कीपर था उसने ये भी बताया कि जो टाइगर उसके हैंड को लिक कर रहा है, जिसको वो पैट कर रहे हैं, वो टाइगर लास्ट मंथ ही यहाँ पे केज हुआ है और वो बहुत डेंजरस है। ग्रैंडफादर बिल्कुल शॉक हो गए, बिल्कुल स्टिल, मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे, बिल्कुल स्टैचू हो गए थे। सो ग्रैंडफादर्स आर्म वो स्टिल इन द केज, बिल्कुल अटक गए थे, एंड द टाइगर वाज लिकिंग इट, उनके मन में चल रहा था डेंजरस सुन के, बट वो टाइगर कंटिन्यूसली इनके हैंड को लिक कर रहा था। ही समहाउ विड्रू हिज आर्म, समहाउ उन्होंने किसी तरह करके अपना हाथ उस केज से बाहर निकाला, और उन्होंने एक डिसरिस्पेक्टफुल लुक दिया कीपर को, मतलब एक जो खुश वाला डिसरिस्पेक्टफुल लुक नहीं होता है, वैसा उन्होंने कीपर को दिया, और उन्होंने टाइगर को गुड नाइट बोला और वो वहां से चले गए। वो अपने, उन्होंने उस टाइगर को टिमोथी की तरह ही एड्रेस किया कि ओके टिमोथी बाय एंड गुड नाइट। So this is the story all about a tiger in the house. कोई आपके घर में 2 दिन के लिए रहता है तब भी आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो, और ग्रैंडफादर को तो एनिमल से इतना प्यार था, जब वो टिमोथी को घर पे लेके आए थे वो एक छोटा सा कप था, बट जब वो इनिशियली बड़ा हुआ और जब उन्होंने उसको जू में डाला तब वो बड़ा था, तो ग्रैंडफादर इमोशनली बहुत अटैच थे टिमोथी से। और जब उन्होंने ये बात सुनी कि टिमोथी की लास्ट मंथ ही डेथ हो गई थी निमोनिया से, तो वो उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए थे, उन्हें बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि अच्छा ये टाइगर जिससे मैं इतना प्यार कर रहा था, जिसके लिए मैं इतनी चिंता कर रहा था, वो मेरा टिमोथी नहीं है। तो वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गए थे, उनसे कुछ नहीं बोला गया, वो बस चुपचाप वहां से उन्होंने उस कीपर को एक डिसरेस्पेक्टफुल लुक दिया, और तुरंत उन्होंने बस उसको वहां पे टाइगर को गुड नाइट कहा और वो वहां से चले गए। So now let's come to the conclusion of the story. हमारी story A Tiger in the House of conclusion क्या है? Let's know about that. So we'll start. The story teaches us that the basic nature or traits of a person do not change irrespective of the environment in which he lives. So simple conclusion है story का. The story tries, हमें सिखाती है कि हमारा जो basic nature है, basic मतलब जो हमारा नेचर शुरू से है, जब से हम पैदा हुए तब से, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हम चाहे कहीं पे भी चले जाए, चाहे हम न्यूजीलैंड चले जाएं, चाहे हम दिल्ली चले जाएं, चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे हम शहर के या देश के किसी भी टाइप या किसी भी पार्ट में चले जाएं, तब भी हमारा जो बेसिक नेचर है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट इन विच ही और शी लिव्स। हम कहीं पे भी रहे, पर हमारा बेसिक नेचर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर हमारा बेसिक नेचर केयरिंग है तो वो हम हमेशा सबकी ही केयर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ट्राइंग टू टेल अस, that the story teaches us that the basic nature or traits of a person do not change irrespective of the environment in which he lives. So this is the basic conclusion of the story, that you cannot change the basic nature or traits of a person. अब grandfather जैसे story में उनका basic nature था animals के प्रति, उन्हें बहुत प्यार था, तो फिर वो कहीं पे भी वो छोड़ नहीं सकते थे। जब अगर वो जू में भी गए, उन्हें नहीं पता था कि वो टिमोथी नहीं है, जब उन्होंने केज के अंदर हाथ डाला, तो वो उनका बेसिक नेचर है कि उन्होंने सबसे पहले उस टाइगर को उन्होंने प्यार दिखाया, यू नो, ही द केयर एंड द लव एंड द सपोर्ट दैट ही हैड गिवन टू टिमोथी, so same he had given, though that is his basic nature, that he had a lot of love for animals. Clear everyone? So this is all for A Tiger in the House. Moving ahead, yes, this is very important to subscribe, like, share, comment, and to press the bell icons to get the notification of all my videos. Okay, I'm going to teach you people a lot of things, but for that you have to subscribe, like, share, comment, and press the bell icon. Okay, so don't forget to press any icon. That's all for today. Thank you. Thank you. Take care. Stay safe. Stay at home.